सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। So we are seeing again Gita Dhyanam after completing this Bhagavad Gita. So now is very meaningful to see this Dhyanam, Gita Dhyanam, because each and every shloka we have seen. अब पूरा जो है गीता का अध्ययन होने के बाद गीता ध्यान को समझना और भी आसान और सरल और बहुत रुचिकर हो जाता है. वेरी इंटरेस्टिंग. So this Dhyanam has got lots of things to show, because जो हमने अभी तक देखा है उसका पूरा हम लोग इसके अंदर आपको सार्थक रूप में दिखाई देता है. पहले यहाँ पे हे अम्ब त्वाम अनुसंदधामि. दिस इज द मेन वर्ब, अनुसंदधामि. Completely I dedicate to you and I am doing your swadhyaya anusandadhami. So hey Amba, why one should call Amba? What does the meaning uses Amba means? Amba, the mother, has got motherhood for the person. Here all these jivas are suffering from the samsara, birth and death. So therefore, this Bhagavad Gita in the form of Shruti, of Veda, she is like a mother. And how the mother takes care of the child, even though sometimes it scolds you that don't stand in the sun, come and sit in the shadow. हिंदी में कहेंगे तो धूप में मत मर, छाया में आके मर जा. The same way sometimes scolds you. आपके ऊपर कई बार जो है इस प्रकार से नाराज होकर के श्रुति आपके ऊपर एक प्रकार से ऐसे कुछ कठोर शब्द का प्रयोग करती है. तो उसके पीछे एक ही होता है कि हितम.
what's hitam for the जीवा. तो इसलिए यहाँ कहा गया कि हे अम्ब, ओ मदर, you deserve as a mother, you have what compassion, you take care of the every jiva. And because there is example here, Bhagwan Krishna is as a acharya, guru, and Arjuna as a disciple of a acharya. So therefore, his first line he says, Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam. And here, temporarily you can say this Pratibodhitam also a verb. कौन सी क्रिया है यहाँ पे? कहते कि ये प्रतिबोधिताम है ना. प्रति जो उपसर्ग है, बुध टू नो, bodhitam is explained, made understood. To whom? To Arjuna. And Arjuna is main here, but we all are beneficiary of it. But here, Pratibodhitam, explained very well. To whom? Parthaya, the son of Kunti, Pratha, the mother, and the son Arjuna is called Partha. And then the fourth case is Parthaya. Bhagavad Gita is explained to Arjuna. भगवान ने अर्जुन के लिए अच्छी तरह से समझाई. अब भगवता, भगवत शब्द है, and then third case Bhagavata. Bhagah asya sthiti Bhagavan. One who has got the all qualities, 6 qualities. Bhaga Shada iti Ringana. So all qualified, all the qualification and all the qualities is one who carries called Bhagah. Asya sthiti Bhagavan. One who has got all wealth is called Dhanavan. One who has knowledge is called Gyanavan. Here, say Bhagavan. And then third case is Bhagavata, by Bhagavan, by Bhagavan Krishna, who is not other than Narayana. Narayanena Swayam. Naraha asya astiti Naraha. Naraha, the person, and then whole this sansara or creation is called Naraha. Naraha is idam iti Naraha. And Ayanam is the place. Bhagavan is seen or known in within the sansara. And one who dwells in the sansara is called Narayana. Naraha Ayanam. भगवान का स्थान क्या है? ये सारा संसार. One who lives in samsara, because the creation who has created, the creator is not away from the creation. He is supposed to be there. When you make the Italy out of what? This rice. And then rice supposed to be there. Karas is little different and the rice is different. No. Bhagavan has made this all Jagat because he is everything. How the Pancha Mahabhutas, Akashaha, Vayuhu, Tejaha, everything his belongs to everything. So therefore he is not away. So therefore Narayana stands for Narasidam Naram. All this Jagata is pervaded by Ishvara as the Narayana.
So that's this Narayana, one who is in this creation is called Narayana, Narasya Ayanam. This place where Bhagavan himself is dwelling. भगवान अपने आप इस जगत के बाहर नहीं है, उसी के अंदर है। तो नारायणेन, नारायण भगवान ने, भगवता, and suppose he could have been busy and asked someone to explain for Arjuna, but he says no, he found the time for himself and then started explaining Swayam by himself. Narayana Swayam Bhagavata Pratibodhitam. भगवान ने खुद अपने आप जो है किसके लिए, पार्थाय, अर्जुन के लिए समझाई। तो ये जो है हमारे सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्रसाद मिला जो अर्जुन के माध्यम से। The sake of Arjuna, but we are the beneficiary. Then how come we are able to see all this Upadesha which is taught in between the battlefield, Mahabharata? There are sages who had given their life and they worked for it so that the Upadesha of Bhagavan will not go away, not get wasted. So he says Vyasacharya was not seen anybody, but he was there to compare all these slokas, this Upadesha. Like the flowers are thrown, scattered everywhere, but same flowers you make together, gather them and put as a mala, it looks beautiful garland. The same way, Bhagavan's Upadesha was scattered, but Arjuna, our Vyasacharya made is, let's say, like a, what? It was a, what kind of, this was, which meter? Chanda, Anushtup Chanda. Therefore, Vyasena Grathitam. ग्रथिताम मतलब उनको अच्छी तरह से गूंथ लिया। व्यासेन ग्रथिताम, भगवान के सारे शब्दों को उन्होंने अपने आप मानो की माला के जैसे उनको गूंथ लिया। ग्रथिताम व्यासेन। Who's भगवान व्यासाचार्य? says पुराण मुनिना. He is the Muni. By that Muni, Munina. तो जो स्वामी जी की भाषा के Muni means not one who has beard or long hair on the head. No, Muni is Mananashilaha. Mananashilatvat Muni. हमेशा मनन करने वाला किसका? अपने स्वरूप क्या मनन करने वाले मुनि। और ऐसे मुनि के द्वारा, एंड कब के है मुनि? पुराण मुनि ना, जितने सारे पुराण लिखे हुए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है, इन सभी के कर्ता है Purana Munina. Where does he found this opportunity to put together Grathita Mrs. Madhe Mahabharatam? It was not in a AC room. It was in the middle of Mahabharata, where both sides, everybody was ready to start fighting or kill each other, that kind of situation. And this is called Mahabharata. महाभारत के बीच में मध्य
द राइट मिडल ऑफ महाभारत। तो इन महाभारत के बीच में पुराणों के मुनि जिन्होंने, व्यास जी ने क्या क्या, इन सारे भगवान के उपदेशों को एक अनुष्टुप छंद में, कुछ त्रिष्टुप छंद में उसको ग्रथित किया, उसको लिखा। व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। और उसके अंदर है क्या चीज? तो कहते कि उसके अंदर अमृत है, नेक्टर। किस प्रकार का अमृत है? तो कहते अद्वैत अमृत वर्षिणी। और यहाँ अमृत की वर्षा की गई। कौन सा अमृत? अद्वैत। नॉर्मली वी डू आवर व्यवहार इन अद्वैता। You are separate, I am separate, everybody is separate from each other. So that is fine in Vyavahara. But Shastra says Sarvam Khaluidam Brahma. Everything is Advaitam. How? As we see the technology, even you see all these parts are made out of what? Out of mud, मृत। मृतेन, जो मट्टी के बने हुए जितने सारे कुल्हड़ आदि है, वो सब के सब बने हुए मट्टी के। बट अगर पूछेंगे ये किससे बने हुए हैं, तो मट्टी से बने हैं। तो भले ही अलग अलग है, लेकिन उनका कारण रूप से सब जो है एक है। तो मट्टी अनेक नहीं, मट्टी एक ही है। तो कारण रूप से एक होने के कारण उसको कहा जाता है अद्वैत। तो संपूर्ण जगत की जो सृष्टि है, उस सृष्टि का कारण एकमात्र आत्म तत्व और वो सभी के अंदर विराजमान है। उसी का ही ज्ञान कराने वाली जो गीता है, वो क्या करती है? अमृत कराती। कौन सा अमृत की वर्षा कराती? कौन से? अद्वैत। दिस इज नॉट सेपरेट, एवरीथिंग इज वन, है ना। जैसे एक अगर कुल्हड़ हम देते हैं, तो सारे जितने सारे वहां पर बने हजारों जितने सारे घट है, उन घट का आपको ज्ञान होता है कि ये सब इसी मिट्टी से बने हुए। The same way, here, this संसार, all this, जितना बड़ा संसार है, ये सब का जो है कारणभूत वही है सच्चित आनंद स्वरूप। तो इसलिए ये भगवत गीता हमें वर्षा कराती है। इसमें कंजूसी नहीं, बूंद से नहीं है, घड़े से नहीं। आपको कहते हैं उससे तो आपको स्नान कराते हैं, इसकी उस अमृत की जो वर्षा कराती है आपके ऊपर, है ना। तो अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करने वाली भगवती, है ना, भगवान संबंधिनी। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको ज्ञान करना, इफ यू वांट टू नो द पर्सन, दैट पर्सन यू कैनॉट अंडरस्टैंड, बट इफ यू अप्रोच हिम, you know, his wife, and that lady knows about that person. यदि आपको भगवान के बारे में ज्ञान करना है, तो भगवान का ज्ञान आपको हो सकता है। आप केवल उस श्रुति को समझो, श्रुति को पूछो, श्रुति से आप जानकारी लो कि एक्चुअल में भगवान है क्या। तो कहते हैं ये श्रुति है, उसका नाम है भगवती। तो जैसे पत्नी को पूछेंगे तो पति के बारे में सर्वस्व उसको जानकारी होती, वैसे ही इस आत्मा की, परमेश्वर की जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वो है इस श्रुति को। तो इसलिए श्रुति को कहा गया भगवती। ये भगवती भगवान को समझाने वाली श्रुति जो है, वो क्या कराती है? हमें
अमृत की वर्षा कराती है, और उसका नाम है अष्टादशाध्यायिनी। इसके अंदर 18 अध्याय है। अष्ट प्लस दशा, हमने देखे अभी एक एक करके, एक से लेकर 18 तक, ये सारे जो है 18 अध्याय जिसके अंदर है, उसका नाम पड़ा है अष्टादशाध्यायिनी। तो वो अष्टादशाध्यायिनी भगवती अमृत वर्षिणी, अद्वैत अमृत वर्षिणी, हे अम्ब त्वाम अनुसंधामी, आपका हम लोग ध्यान करते हैं। तो हे माता, हे भगवती, हे श्रुति स्वरूपा भगवती त्वाम अनुसंधामी, आप क्या हो? भगवत गीते, यहाँ पे हे भगवत गीते संबोधन है। हे अम्ब, हे भगवत गीते, त्वाम अनुसंधामी, आपका हम लोग ध्यान करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। क्या हो आप? भवद्वेषिणी, भव कहते संसार, अज्ञान, और द्वेषिणी मतलब वन हु रिमूव्स हिम। जब ज्ञान आता है तो अज्ञान वहां ठहरता ही नहीं। द नॉलेज इज देयर, ignorance doesn't stand. So द्वेषिनीम, भव द्वेषिनीम, you are the enemy of the ignorance. Means Bhagavad Gita once got in your life, the knowledge of Bhagavad Gita, the ignorance of samsara doesn't stay there. Therefore भवद्वेषिनीम, अज्ञान के साथ हमेशा द्वेष रखने वाले, हे भगवत गीते भवद्वेषिनी। तो हे अम्ब, हे भगवत गीते त्वाम अनुसंधान, ओ भगवत गीता, we pray and we always take your blessing that we should know what is your original knowledge. Therefore we pray for you, and that is how he says, पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। भगवान खुद अपने आप अर्जुन के लिए यहाँ उन्होंने क्या क्या प्रतिबोधिता, मतलब अच्छी तरह से समझाई। फिर दूसरा रोल व्यास जी ने किया कि महाभारत के बीच में सूक्ष्म रूप से बैठ करके उन्होंने इन सारे शब्दों को क्या किया? ग्रथित किया, मतलब उनकी सुंदर माला पिरोई, और उस माला को बना करके एक श्लोकों के रूप में उसको अनुष्टुप छंद में जोड़ करके हमें इतने सारे अध्याय बना दिए। इसलिए कहा गया व्यासेन ग्रथिताम, जिनका नाम दिया पुराण मुनिना, पुराणों के मुनि, उनके द्वारा। कहाँ पे? मध्य महाभारत, महाभारत के बीच। और भगवत गीता का स्वरूप यह है कि वो अमृत बरसाने वाली है। हमें जो हम लोग शारीरिक रूप से जो मरण धर्मा है, एक दिन जन्मे एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन इस मरने वाले इस व्यक्ति को भी वो अमर का ज्ञान देते हैं। One who gives the knowledge of what? अमृतम, नित्य वस्तु का ज्ञान कराने वाली कहलाती है अद्वैत अमृत वर्षिणी। और वो भगवत संबंधी नहीं, इसलिए भगवती। अष्टादशाध्याय, इनके अंदर 18 अध्याय है। तो ऐसे अम्ब आपका हम अनुसंधान, आपका ध्यान करते हैं। हे गीते, जिसके पास ये आपका नॉलेज है उसके पास कभी भी इस संसार का अज्ञान नहीं टिकता। भवद्वेषिनी। दूसरे श्लोक में कहते हैं, अब आपको तो आपने समझा, लेकिन मैं, जिसने हमें ये भगवत गीता हमारे तक पहुंचाई है, विदाउट इट वोंट बी पॉसिबल टू सी
Or here, so this found of Bhagavad Gita, how one can able to read, because he stayed there and then he has returned. और ऐसी ज्ञान की चीजें हमें समझाई, तो ऐसे महान बुद्धि वाले व्यास जी को हम यहाँ पे नमस्कार करते दूसरे श्लोक से। नमः अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि। हे व्यास जी, हे विशाल बुद्धि वाले, ये भी संबोधन है, विशाल बुद्धि। हे व्यास भगवान, ते नमः अस्तु, आपके लिए मेरा नमस्कार है। माय सैल्यूटेशन टू यू, यू हैव गॉट सच ए ब्रिलियंट buddhi, because of that we are able to know, to see, to read, and I can see from the beginning to the end what are the things you have written here. So namaha astute vyas vishal buddhe, brilliant mind, and your eyes are like the blooming flower of what? Lotus. Fullar vinda yata patra netra. Netra is eyes. Patra is the leaf or the petal of the lotus. So your eyes are like the lotus. When you see blooming lotus, you feel so happy. The same way, here Vyasacharya's eyes was like the blooming lotus. So therefore, he said, Pullara Vinda. Pullara Vinda means again flower. Pullara means the one who's got bloomed. जो विकसित हुआ वो किसका? कमल का फूल जैसी आंखें है उनकी, इनकी भगवान व्यास। तो ऐसे सुंदर आंखों वाले व्यास जी को हमारा प्रणाम है ना, नमः अस्तु। क्यों भाई? तो कहते हमारे लिए उन्होंने क्या दिया? तो एन त्वया, जिन आपके द्वारा क्या किया? भारत तैल पूर्ण, वी हैव रियली फिल्ड the lamp of what? भारता। महाभारत रूपी ये संपूर्ण जो ग्रंथ है, और कहने के लिए तो एक वार है, एक प्रकार का युद्ध है, लेकिन just got lot of knowledge है ना। तो आपके बिना इस दिया को कोई पूरा नहीं कर सकता था, तो आपने क्या किया? तैल पूर्ण, अपने इस दिए को अंदर क्या किया? तैल से परिपूर्ण किया। मतलब आपके कारण इसके अंदर इतना सारा ज्ञान से आपने उसको भर दिया। और ये जो दीप है, और इस दीप को अगर दीप ही रखते हैं, उसको उसकी ज्योत अगर नहीं जलती है तो वो अधूरा रह जाता है। इसलिए कहा गया कि आपने उस दीप को ऐसा ही केवल तेल से नहीं भरा, उसके अंदर आपने दीप भी जलाया। कौन सा दीप जलाया? ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालित। आपने इस ज्ञान को, ज्ञान रूपी दीप को जलाया। मतलब जलाना ही मतलब आपके अंदर पड़ा हुआ अज्ञान, उसको आपने नष्ट किया। इसलिए ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालित, प्रज्वालित क्रियापद है ना, आपने प्रकर्षेण ज्वालित, अच्छी तरह से आपने उसको जला दिया। किसको? प्रदीप, जो प्रकाश देता है। और कैसा है प्रकाश? ये केवल बाहर का प्रकाश नहीं, अंदर का भी प्रकाश देता। कौन सा? ज्ञानमय, जिसके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश को देता है। पूज्य स्वामी जी इसमें हमेशा एक्सप्लेन करते थे,
Jnanamaya. Mayat is, it gives two meaning. One is prachurya, and another is vikara. When you say there was, my body is what? Annamaya. Anna means what? Made of food. So that's why we eat food. And later on, if you throw our body after death, so many other vulture will come and eat it, because this again food was something else. So this body has eaten food, and now it's become another form of annam. So annena jayate, annena vardhate, and finally it become annam bhavati. So same way it says here, jnanamaya means what? This is not vikara, this is prachurya. When it says jalamaya itat nagaram, ये जो नगर जो है जल में हुआ, मतलब क्या हुआ? वह विकार अर्थ नहीं, वहां है प्राचुर्य अर्थ है ना. There are maximum water. The same way here in Bhagavad Gita, there is only and only knowledge. Therefore, jnanamaya etat pradipah, and that was lighted, prajwalitah kena ena tvaya, आपके द्वारा ये ज्ञान रूपी दीप को जला दिया. और केवल जलाया नहीं, प्रज्वालित, उसको अपने अच्छी तैल पूर्ण, अपने जो है इस महाभारत रूपी दीप को अच्छी तरह से फिलअप करके फिर उसको यह लाइटेड इट. Therefore, my salutation to your great knowledge and your buddhi. नमः ते व्यास विशाल बुद्धि अस्तु. आपके विशाल बुद्धि के लिए मेरा प्रणाम है. आपकी सुंदर आंखें हमारे लिए बहुत अच्छी लगती. तो फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र, कमल के दल के जैसी सुंदर दिखने वाली आपकी आंखें, और जिनके कारण, जिनके द्वारा क्या क्या, भारत तैल पूर्ण, अपने महाभारत रूपी इस दीप को तेल से भरा, मतलब ज्ञान से भरा, और ये ज्ञान का दीप हमेशा के लिए फिर जलता ही रहता है. और कितनों के जीवन का अंधकार इस दीप ने क्या क्या नष्ट किया, और सब उनके जीवन में एक सुंदर जो है ज्ञान रूपी दीप को जला दिया. ये व्यास जी के लिए एक नमस्कार. अब भगवान के लिए कहते हैं कि जो तीसरा श्लोक है, कृष्णाय नमः. हौ प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः. गीता रूपी अमृत के दोहन करने वाले इनको कृष्णाय नमः. माई सैल्यूटेशन टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के लिए. अब उनके सारे इस यहाँ पे विशेषण है, ऑल द एडजेक्टिव्स फॉर कृष्णा. वन हु इज लाइक ए कल्पवृक्ष, प्रपन्न पारिजाताय. पारिजाता is a kalpavruksha here. My salutation to the form of Krishna, one who is like kalpavruksha. Kalpavruksha means those who go to him, they will not go as a empty hand. जो भी उनके पास जाएगा उनको बहुत कुछ मिल के जाएगा. कोई भी भक्त उनके पास जाएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा. तो कहते हैं, लेकिन जाना कैसे? प्रपद है ना, जो शरण जाते हैं, प्रकर्षेण पतति, जो उनके पूर्ण रूप से शरण जाते हैं. तो जो उनके पास शरणागति स्वीकार करता है, उनको
क्या करते वो पारिजाताय, वो उनके लिए उदार बनते हैं। ही गिव्स एज एनीथिंग दे डिजर्व और एनीथिंग दे आस्क। इसलिए आप भक्तों के लिए क्या हो, एक प्रकार से कल्प वृक्ष हो। माई सैल्यूटेशन टू लॉर्ड कृष्णा वन इन द फॉर्म ऑफ कल्प वृक्षा, द विशिंग ट्री, है ना। देन दूसरा एक फॉर्म और दिखा, तोत्र वेत्र एक पान है, जो हमेशा जो दो हाथ, एक हाथ में तो उन्होंने चाबुक और लगाम पकड़ा है, और तोत्र वेत्र एक पान है, और दूसरा ज्ञान मुद्राय। तो कहते हैं हमारी जीवन की डोरी भी अगर हम उनके जीवन उनके हाथ में देते हैं, तो यहाँ पे जो डोरी है, जो लगाम है, किसकी लगाम, मीन्स यू you control the horses. Here we have got another horse. What kind of horses? Here we say idam shariram. What? It is like a what? We have got our chariot. This body is like a chariot. And the inside all these senses are like horses. They run on which road? They runs on the road of objects. विषयान, विषय रूपी रोड पे दौड़ने वाले उन घोड़ों का जो लगाम है, अगर हम उनके हाथ में देते हैं, तो your horses will be running on the road, not out of road. If they goes out of road, then your chariot is in danger. तो इसलिए कहा जाता है कि हम भी अगर अपना जो कंट्रोल है अपने इंद्रियों का, अपने मन का, अगर हम उनके हाथ में देते हैं, तो कहा जाता है तोत्र वेत्र एक पानये। जिन्होंने अर्जुन के घोड़ों का लगाम अपने हाथ में रखा है, और वही हमारे भी इस रथ, शरीर रूपी रथ का अगर हम लगाम उनके हाथ में देते हैं, तो हमारा रथ एकदम सुरक्षित रह सकता है। तो ऐसे कंट्रोल करने वाले, लगाम को अपने हाथ में रखने वाले, और दूसरे हाथ में क्या है, ज्ञान मुद्राय, जो ज्ञान की मुद्रा बताने वाले। इसलिए कहा जाता है ये जो उंगलियां है ना, so these 5 fingers are very important. One, this thumb is very important for the whole, all the other fingers. कहते ये अगर नहीं है तो ये सारी जो है कुछ आप पकड़ नहीं पाएंगे, will not greet, so it needs this one. So this is not like the chaitana, chaitanya. This is like ahankara or jiva. This jiva, if goes with this what, mind, senses and your body, if it got associated with this, then he's always away from the mainstream, means Ishvara. As long as you are together with this, I am the body, I am the senses, I am the mind, then always you are with them. You are away from the Ishvara. And as you leave them, seeing their anityatvam, mithyatvam, then you come to search to the Atma, and then you find that Aham Brahma Asmi. When you come to mainstream, it's called Jnana Mudra. जीव जब तक अज्ञान के साथ, संसार के साथ जुड़ा रहता है, तब तक भगवान से दूर रहता है। और जैसे उसने संसार को समझ लिया और बाद में वापस अपने तत्व के पास, आत्मा के पास, अपने स्वरूप के पास जुड़ गया, तो फिर उसने अपने आप को समझ लिया। यही है ज्ञान मुद्रा। और ऐसे ज्ञान की मुद्रा धारण करने वाले भगवान कृष्ण के लिए
तो ज्ञान मुद्राय कृष्णाय तोत्र वेत्र एक पाने, वन हु इज होल्डिंग द व्हाट, जो लगाम घोड़ों का एक हाथ में, आने वाले सभी को अपना आशीर्वाद दे करके सबकी इच्छा पूरी करने वाले प्रपन्न पारिजाताय। और फिर और क्या करते भगवान, कहते कि वो उन्होंने सारे गीता का क्या किया, गीता का पूरा जो है गीता का उन्होंने क्या किया, गीता अमृत दुहे नमः, गीता रूपी अमृत का दोहन किया है ना। गीता रूपी अमृत मतलब गीता रूपी ज्ञान का दोहन किया। क्योंकि अगले श्लोक में वो कहेंगे कि सारे उपनिषद जो है गाय हैं और उसको सबका दूध निकालने वाले गोपाल गोपाल नंदन है, और उनको गाय दूध उस वत्स के लिए देती है, हमने इसमें भी देखा था। तो इसे पार्थ वत्स सुधि भोक्ता, और हमारे जैसे उसका आनंद लेने वाले, मिला था दूध बछड़े के लिए, मिला था उपदेश कृष्ण के लिए, लेकिन हम ही उसके बेनिफिशियरी बने। तो पार्थ वत्स सुधि भोक्ता, वी आर बेनिफिशियरी। और दिस काइंड ऑफ अमृत गीता दुहे नमः, my salutation to Lord Krishna who has taken the nectar out of Bhagavad Gita। तो गीता रूपी अमृत को दोहने वाले भगवान कृष्ण के लिए मेरा नमस्कार। इस प्रकार से भगवद गीता का ये जो है तीन यहाँ पे कहा कि एक तो पारिजात मतलब एक प्रकार से कल्पवृक्ष से भगवान, दूसरा जिन्होंने भगवान के हाथ में अपनी जीवन की जो डोरी दे दी है वो आप उनका पूर्ण सुरक्षा रखते हैं, और ज्ञान रूपी मुद्रा को हमें समझाते कि तुम जो है जब तक संसार में भटकोगे तब तक जो है मेरे से दूर रहोगे, और जो मेरे पास आता है तो फिर वो संसार से अपने आप को अलग कर सकता है। तो ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, और जिन्होंने गीता रूपी अमृत को दोहन किया है, ऐसे गीता रूपी गीता अमृत तुहे नमः। ठीक है, इसको फिर हम लोग कल देखेंगे अगले वाले श्लोक। अब हम लोग आगे वाला एक जो इसके अंदर एक इसको पूरा करें ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।